नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू झलक, अ सीरीज ऑफ वीकली करंट अफेयर्स बाय दिशा पब्लिकेशन एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई एम सारा त्यागी और इस वीडियो में हम जनवरी 2022 के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, बीट यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएसई, एनडीए, एफकैट, these current affairs are going to be very important for you in achieving your dreams. ओके और अगर आपको करंट अफेयर्स एलैबोरेटेड फॉर्म में चाहिए देन यू कैन चेक आउट आवर बेस्ट सेलिंग मैगजीन विच इज़ क्वार्टरली कंपाइलेशन। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऑल्सो जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगेन। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पर्सन इन न्यूज़ से। द फर्स्ट पर्सन हु इज इन न्यूज़ इज मिस्टर उर्जित पटेल. Why he is in news? Because he has been appointed as the Vice President of Asian Infrastructure Investment Bank. We know him as the former governor of RBI basically. और ये इनके बारे में थोड़ी सी information दी हुई है that in 1990 he joined IMF, that is International Monetary Fund. Along with that, after that he went on deputation to RBI. So this is the information that you can recall again. Let's talk about the other person in news, who is Mrs. Alka Mittal. She has been appointed as the Interim Chairperson and Managing Director of ONGC, and she is the first woman in this to hold this post. That is why this is important. Let's talk about the other person in news, who is new Chief Economist of International Monetary Fund. His name is Pierre-Olivier Gourinchas. That's the correct pronunciation. Along with that, he has succeeded Geeta Gopinath as the Chief Economist. Geeta Gopinath, she's an Indian origin economist, and she was the Chief Economist of IMF earlier. Now he has been appointed as same. Let's talk about the other person in news, who is Anupam Ray. Anupam Ray has been appointed as India's next permanent representative to the UN conference on disarmament in Geneva. Okay, so इनके बारे में बात करें तो he is a 1994 batch Indian Foreign Service और IFS officer रहे हैं ये basically. इतना आपको बस याद रखना है and his name, okay, for the exam perspective, from the one day exam perspective basically. अगले person in news है, he is basically Commander VS पठानिया और ये 24 डायरेक्टर बन गए हैं, डायरेक्टर जनरल बन चुके हैं DG ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड बेसिकली। और ये डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज विलिंगटन के एलुमनस रहे हैं और नेशनल डिफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली के भी। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द पर्सन इन न्यूज़, हु इज डॉक्टर एस सोमनाथ. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द वन डे एग्जाम परस्पेक्टिव एंड ये वाला क्वेश्चन आ ही सकता है, मतलब बहुत चांसेस है, बिकॉज ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू इसरो चीफ. And in the comment section you will tell me that who he has succeeded basically. इससे पहले कौन थे इसरो चीफ, हम उनके बारे में न्यूज़ में सुनते आए हैं इतना ज़्यादा और अभी चेंज हुए हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए. सो प्लीज़ कमेंट करके बताना. Okay, let's talk about the next person in news, which is the Justice Aisha Malik. She was in news because she has been appointed as the first woman judge of the Supreme Court of Pakistan. ठीक है, वहाँ पे एक जुडिशियल कमीशन बैठा था, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके हेड थे चीफ जस्टिस गुलजार अहमद. और उन्होंने वोट्स के साथ, देयर वर आउट ऑफ 5 वोट्स 4 वोट्स वर ऑल्दो मेजॉरिटी थी, इट वाज अगेंस्ट, बट देन शी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द first woman judge of the Supreme Court of Pakistan. Now let's talk about the other category, which is awards and honors. Let's see what are the awards which are in news. Golden Globe Awards 2022. Golden Globes Award की सेरेमनी हुई थी, which is for the excellence in film, both America and international, और American television के जो shows होते हैं उनके लिए होता है ये basically. This was the 79th edition of the annual event of this Golden Globe Awards. And इसमें 2 films जो थी who have been firstly named as the, like, they won the maximum number of awards. Those were The Power of the Dog and The West Side Story. Okay, Golden Globe Awards याद रखना है. अगले अवार्ड को देखते हैं, दैट इज साहित्य अकेडमी अवार्ड. वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव, बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है. So basically this award is in the recognition of the literary efforts of authors and writers of India. Basically 22 languages जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उनके लिए अवार्ड दिया जाता है, जिसमें कि इस साल फेमस राइटर नमिता गोखले, शी हैज़ रिसीव्ड द अवार्ड फॉर द इंग्लिश नॉवल, और इनकी नॉवल का नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड. सेकेंडली एक साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार भी आजकल दिया जा रहा है, जिसमें कि मेघा मजुमदार
को मिला है इंग्लिश में, और उनकी किताब थी शी वन इट फॉर हर डेब्यू बेसिकली बुक विच इज़ अ बर्निंग। ये एक लिस्ट दी हुई है हमने, सो प्लीज़ गो थ्रू दिस लिस्ट। इसमें हमने 22 लैंग्वेजेस जो भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन की वो मेंशन करके दे आर द नंबर ऑफ नेम ऑफ द विनर्स एंड उनका जॉनरे जो है। सो लेट्स टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट डेज नाउ। इम्पॉर्टेंट डेज में फर्स्ट विल टॉक अबाउट द वर्ल्ड ब्रेल डे। वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व होता है 4 जनवरी को, 2022 को ये ऑब्जर्व हुआ था रिसेंटली, और इसका जो एम होता है दैट इज टू रिकग्नाइज द राइट ऑफ एक्सेस टू द ब्रेल बाय ब्लाइंड पीपल एंड रेज अवेयरनेस फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेल, ओके, इन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली। एंड द डे इज रिमार्क्ड बाय रिमेंबरिंग ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लुईस ब्रेल। तो लुई ब्रेल के लिए, जो ब्रेल के इन्वेंटर थे, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को केटर करने के लिए उन्होंने ब्रेल इन्वेंट की थी, उनके लिए उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर ये डे सेलिब्रेट होता है, दैट इज वर्ल्ड ब्रेल डे। लेट्स मूव अप टुवर्ड्स द अदर इम्पोर्टेंट डे इन द कैटेगरी विच इज़ प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 9 जनवरी। इसका मेन एम होता है टू स्ट्रेंथन द एंगेजमेंट ऑफ ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिकनेक्ट सो दैट दे कैन रिकनेक्ट देयर रूट्स। और ये क्यों मनाया गया था? बेसिकली फर्स्ट टाइम जब मनाया गया था दैट वाज इन 1959 जनवरी। ये बेसिकली जब महात्मा गांधी आए थे साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया, तो दैट डे आफ्टर दैट ही बिकेम द ग्रेटेस्ट प्रवासी हु लेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड लेड इंडिया फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। सो उन्हीं की याद में ये प्रवासी भारतीय दिवस को मनाया जाता है। अगले डे की तरफ बढ़ते हैं विच इज़ वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस रिसेंटली अनाउंस हुआ था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था, विच विल बी सेलिब्रेटेड ऑन December 26 नाउ। ठीक है, बेसिकली दिस इज़ अ ट्रिब्यूट टू साहिबजादास विच वर द 4 sons ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी। और सेम डे पे साहिबजादा फतेह सिंह एंड साहिबजादा जोरावर सिंह दे अटेन द मार्टिडम। ओके, सो उन्हीं की याद में ये वीर बाल दिवस अब से 26 December को मनाया जाएगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में विल टॉक अबाउट मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी विच हैज़ जिसका फाउंडेशन स्टोन जो है अभी रिसेंटली ले हुआ है इन मेरठ उत्तर प्रदेश। दिस विल बी अ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जिसमें कि जो कि है सालावा और कैली विलेज में है, सरदना में, और इसका अराउंड ₹700 करोड़ का इसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगा। और इसमें ऑल मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इसका मॉडर्न फैसिलिटीज़ होंगी, इसमें हॉकी ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ऑल ऑफ दीज ग्राउंड्स विल बी देयर एंड दिस विल केटर टू द नीड्स ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन इन द कंट्री। अगले न्यूज़ को देखते हैं फ्रॉम द स्पोर्ट्स अरीनाज, दैट इज इंडिया डिफीट श्रीलंका इन द अंडर-19 एशिया कप 2021। रिसेंटली इंडिया ने श्रीलंका को डिफीट किया है in the under-19 Asia Cup, और in this match Sri Lanka opted to bat first and score 106 for the 9 and stipulated 38 overs, और India ने रिकॉर्ड 7 जो है रिकॉर्ड बनाया है, that 7 कप टाइटल इंडिया लेके आया है। ओके, and this is far much from the other teams also. Let's talk about the national news now. National news में Chilka water bird survey was recently conducted, and this was conducted in the Odisha because Chilka Lake is in Odisha. Odisha Welfare और Wildlife Organization द्वारा ये कंडक्ट किया गया था, जिसमें कि बताया गया है that around 10,74,170 birds they were surveyed, और बेसिकली इनकी जो अनकॉमन और रेयर मंगोलियन गर्ल्स होती हैं वहाँ पे उनका सर्वे किया गया था। अराउंड 107 वाटर बर्ड स्पीशीज़ का सर्वे हुआ था। तो these are the some of the which you can see on your screens are some of the highlights of the चिल्का वाटर बर्ड सर्वे। ओके, और यहाँ पे जो है these are basically चिल्का लेक जो है that is a host to migratory birds from Himalayas, Ladakh, South East Asia, Aral Sea, parts of Russia, Caspian Sea and Lake Baikal. Okay, अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं विच इज़ नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, NEET 3.0 जिसे बोला जा रहा है। इसमें दिस इज़ अ इनिशिएटिव बाय एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। ही हैज़ लॉन्च्ड इट रिसेंटली, और दिस इज़ अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग बेस्ट डेवलप्ड एडटेक सॉल्यूशंस एंड कोर्सेज टू स्टूडेंट्स इन इंडिया। बेसिकली दिस इज़ लाइक जैसे आपको स्वयं पोर्टल आजकल दिखता है,
ये आपको कोर्सेरा दिखते हैं। सो दिस इज ऑल्सो नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको अलग अलग कोर्सेज देखने के लिए मिलेंगे रीजनल लैंग्वेजेस में अपनी अपनी। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ आयुष मिनिस्ट्री हैज़ लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर द इंटरनेशनल योगा अकेडमी। कहाँ पे है? ये है हैदराबाद तेलंगाना में ले हुआ है रिसेंटली। और इस वाली अकेडमी में इंटरनेशनल टीम होगी ओवरसीज़ की जो कि ट्रेन करेगी। बेसिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे रिलेटेड टू योगा, और योगा के अलग अलग रूम्स होंगे, कंसल्टेशन रूम्स होंगे, 200 सिटिंग कैपेसिटी होगी। सो दिस इज़ द इंटरनेशनल योगा अकेडमी बेसिकली। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ कमिंग फ्रॉम द डिफेंस सेक्टर। लेट्स टॉक अबाउट द डिफेंस न्यूज़ नाउ फ्रॉम द इंटरनेशनल अरीनाज, विच इज़ नॉर्थ कोरियाज हाइपरसोनिक मिसाइल। नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली टारगेट हिट किया है ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल, और ये उनका सेकेंड टेस्ट था। दिस इज़ टू बूस्ट देयर न्यू मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, ठीक है, डीन्यूक्लियराइजेशन टॉक्स जब वो बात कर रहे थे उसकी। और बेसिकली और भी मिलिट्रीज जो थी आसपास की, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था, नॉर्थ कोरिया ने खुद से नहीं बताया था दैट दे हैव टेस्टेड दिस। एंड दिस इज नॉर्थ कोरिया हैड फर्स्ट टेस्ट, बेसिकली जो उनका फर्स्ट टेस्ट हुआ था दैट वाज इन सितंबर, दिस इज द सेकंड वन। अगले डिफेंस न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2022। एक्सरसाइज ड्रैगन 2022 इज़ अ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज। बेसिकली बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में एक्सरसाइज होगी, विच इज़ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, साउथ कोरिया एंड जापान, इन सब के बीच में होगी। और कहाँ पे होगी? गुआम में होगी। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज एग्जाम में इतना पूछा जाता है कि वेयर वॉज दिस एक्सरसाइज हेल्ड, या किस किस कंट्रीज़ के बीच में होती है। सो इट वॉज हेल्ड एट एडर्सन एयरफोर्स बेस इन गुआम, ओके, विच इज़ अ यूएस एयरफोर्स बेस, यूएसए का एयरफोर्स बेस है ये। और इट विल बेसिकली फोकस ऑन एंटी सबमरीन वॉरफेयर ट्रेनिंग। अगले डिफेंस न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ एक्सरसाइज मिलान। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज मिलान जो है बेसिकली 46 फ्रेंडली फॉरेन नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज, ठीक है, एंड दिस इज़ द 11th एडिशन ऑफ इट, जिसमें कि कमांड्री कोहेजन एंड कोलैबोरेशन की बात ये लोग करते हैं। एक्सरसाइज मिलन, इतना याद रखना है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द इंटरनेशनल अरीना। इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करते हैं, विच इज़ यूवेरेपियोसिस डिसाप्रियो। ये क्या है? ये एक तरीके का न्यू ट्री स्पीशी है जो कि आइडेंटिफाई हुआ है इन 2022 एंड इट वाज डिस्कवर्ड इन ट्रॉपिकल ईबो फॉरेस्ट ऑफ कैमरून, ठीक है, जो वहाँ का नेटिव रीजन का है। बेसिकली एक प्लांट है, वहाँ का प्लांट स्पीशी है ये, और इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। इस प्लांट जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये ऐसा प्लांट दिखता है, येलो एंड ग्रीन कलर के फ्लावर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली ट्रंक पे लटके होते हैं इसके, एंड दे हैव प्रोड्यूस्ड अ मॉडिफाइड शूट और अ मॉडिफाइड लीफ विच रिजेंबल्स टू द ब्रांचलेट्स। बेसिकली फ्लावर्स और ब्रांचलेट्स एक ही बात बोली है इसमें। फ्लावर्स इस तरीके से होते हैं कि जैसे कि ब्रांच हो ट्री की। Let's move towards the other news, which is Apple becomes world's first company to hit 3 trillion market cap. Market value जो अब Apple की हो गई, that is 3 trillion, okay? And this is also in China. So in China, the world's largest smartphone market जो है Apple की, it has continued to lead. वीवा, जियोमी, वहाँ की जो करंट मार्केट्स हैं उनको भी पीछे छोड़ के एप्पल हैज़ बिकम द लार्जेस्ट 3 ट्रिलियन मार्केट, ओके। दिस इज द फर्स्ट कंपनी टू टच दिस 3 ट्रिलियन मार्क, यू नीड टू रिमेंबर दिस। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ फ्रांस टेक्स ओवर EU प्रेसिडेंसी फॉर 6 months 2022। सो बेसिकली जो अब आने वाले 6 months में जो भी एग्जाम्स हैं उनमें भी ये पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री ने EU की, दैट इज़ यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी ली है। सो दैट इज़ फ्रांस, और फ्रांस की प्रेसिडेंसी चलेगी जून 30, 2022 तक की। और जो फ्रांस का मोटो रहेगा वो रहेगा रिकवरी, स्ट्रेंथ एंड बिलोंगिंग, विच इज़ बेसिकली हाईलाइटिंग टुवर्ड्स द कोविड-19 सिचुएशन। और इसमें क्या होता है, इसमें 27 नेशन ब्लॉक्स जो हैं, नेशन मेंबर स्टेट्स जो हैं यूरोपियन यूनियन के, उनको देखते हुए हर 6 महीने में प्रेसिडेंसी चेंज होती है। अब जो इसके बाद नेक्स्ट प्रेसिडेंसी होगी दैट वुड बी ऑफ चेक रिपब्लिक। अगले न्यूज़ को देखते हैं, विच इज़ कमिंग फ्रॉम द अरीनाज ऑफ बुक्स एंड ऑथर्स। विल टॉक अबाउट बुक्स एंड ऑथर्स नाउ। सो फर्स्ट बुक इन न्यूज़ इज गांधीज assassin, The Making of Nathuram Godse and His Idea of India. This is an important book written by Dhirendra Kumar Jha,
और इस बुक में ये बेसिकली दे एक्सप्लोर्स द गॉडसेस रिलेशनशिप विद ऑर्गेनाइजेशन दैट इन्फ्लुएंस्ड हिज व्यू एंड गेव हिम अ सेंस ऑफ पर्पस टू ड्रॉ द ग्रेजुअल हार्डनिंग ऑफ गॉडसेस रिजॉल्व दैट लेड टू महात्मा गांधीज assassination. So this is the book in news which you need to remember. Next book which is in news is Ratan Tata's autobiography. ठीक है, जो कि which is being penned down by Thomas Matthew. रतन टाटा की ऑथराइज्ड बायोग्राफी है ये, और ये नवंबर 2022 में आएगी. रतन टाटा इज़ एन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अ फिलैंथ्रोपिस्ट. इनके बारे में हम न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं that he is one of the highest person who has done the highest amount of philanthropy task, highest amount of philanthropy donations he has made. So basically, और ये बुक जो है इनके चाइल्डहुड कॉलेज ईयर्स के बारे में बात करेगी, यार जो अर्ली ईयर्स के इनके इन्फ्लुएंसेस रहे हैं. Okay, last book which is news is Mamta Beyond 2021. So basically this is a book which explores and examines why Bharatiya Janata Party lost in 2021 West Bengal elections and what was the role played by Chief Minister Mamata Banerjee. Okay, so this was it for the first week of January. I hope that you're liking this series, and if you are, please share it with your friends. Have a good week ahead. Keep liking, sharing and subscribing our channel, and see you on our Telegram channel. The link will be provided in the description box. You can post your questions, your queries, your comments in the comment section, whatever you feel about us, and we'll be happy to hear from you. Thank you, and have a good week ahead.